if you go towards this materialistic world, which is temporary, all those girls who wants from you lots of things, and if you cannot give, there is always in every relationship there is business. You will give and she will give you. So if you can't fulfill their wants, they will leave. You have to satisfy them. So from outside you can't satisfy everybody whole, you know. So there will be like this. So you first enjoy the love inside. So when you will enjoy, then you will see that everybody will come to you and they will going to be with you always. So first you know yourself, you feel the love of that eternity, that infinity, then you will not have to run behind those which is temporary. So actually everything is temporary except God. So if you get the love of God, then you don't have to go behind all this. We from our childhood, I and this Mataji, we are from in this organization from our childhood, already 25 years gone. So we don't find anything much more costlier than what we did. We left everything. So, but we don't have any money, we don't have anything. We stay in the ashram, but we don't find that other people are more rich. They have much more things which we didn't got. We don't find anything emptiness in us because we are fulfilled with the love of God. So I will say to all the youngsters, because I was young when I came over here, and it's not like that this religion, what people think that religion is for the older people. This is a very wrong conception, because when I was in my teenager, then that time I came and I felt that only God can fulfill us. So I will suggest all the teenagers to know themselves, to see what the completeness means. Then they don't have to run behind all those things which one day will not be there. Like this sand. If you take this sand, how much you want to keep it in your hand, it will not. It will fall. So how much you want to keep everything as mine, it won't be. It will go one day. So you as soon as you can know this truth, you will enjoy your life. So I want to ask, can I ask? Yeah, you can ask. Hey Shri Ram. My first question, first of all, I want to pranam to all of you from my deep of my heart. And my question to माता जी, जैसे आपने बताया कि जो भी जानता है और जो रियलाइजेशन है वही एक कंप्लीट पार्ट है, कंप्लीटनेस। तो वेदांत जो हमारे हर ग्रंथ का एक बेस है और हर ग्रंथ की जो शाखाएं हैं वो इसी बीच से निकलती हैं। जो आज का हमारा धर्म है वो उसको हम शाखा कह सकते हैं, बीज हम वेदांत कहते हैं। जैसे ब्रह्म की बात की है, ब्रह्म ही सबसे बड़ा है। मैं तो गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कीजिएगा। एंड सब प्रकृति है, प्रकृति में जो हो रहा है वो ब्रह्म को पाने के लिए हमारी आत्मा खुद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्म को लोग फॉलो करते हैं और धर्म को जानकर फॉलो करना, ये दोनों में मैं डिफरेंस समझता हूँ। आज के युग में जो कि एक पीसफुल वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता, हम देख रहे हैं लड़ाइयाँ इंटरनेशनल, तो क्या उसमें जो वेदांत की मीनिंग है वो पीसफुल की तरफ हम देश को या दुनिया को दे सकते हैं, और किस तरीके से दे सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ, और किस तरीके से उपयोगी रहेगी पीसफुल करने के लिए देखो, पहली बात एक बात बोल रहे थे कि ये धर्म जो है ये पूरा है, आंशिक नहीं है। धर्म कोई भी मतलब भेद नहीं करता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। धर्म का मतलब एक ही होता है कि हम सब भगवान हैं, हर किसी में भगवान है। ये यहाँ पे जैसे कुंभ में देखो, इस सब जगह से लोग आए हैं, तो यहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछ रहा है कि कौन पंजाबी है, कौन बिहारी है, कौन क्या है। सब है कि एक जगह में गंगा में जा रहा है, सब एक साथ डुबकी लगा रहा है।
वहाँ पे गंगा जी किसी को भेदभाव नहीं कर रहे कि कौन नीचू कास्ट है कौन ऊंचू है, ये है ना, सब एक कर रहा है। तो धर्म ये कर रहे हैं कि सबके बीच ये एकता ला रहा है। हम लोगों के बीच ये जो लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई भेदभाव के लिए हो रहा है कि तुम अलग हो हम अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं, हम खुद को एक दूसरे से ऊपर रखना चाहते हैं कि हम राजा हैं। तो सब ये जो भेद कर रहे हैं ना, ये कास्ट के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, पैसा को लेके, सब कुछ सब जगह में हम लोग भेद करते करते सबको अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई हो रहा है, हिंदू के साथ मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम बोल रहे हैं हम बड़े हैं, हिंदू बोल रहे हैं हम बड़े हैं। तो यहाँ पे जो धर्म की बात है, धर्म में सब एकता मानते हैं। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ी बात है, सब जगह में बोले हम सब एक हैं। ये अंदर से साम्य आना चाहिए। ये बाहर से हम लोग जो बोलते हैं ना हम सब भाई भाई है, बाहर से भाई भाई होने से जब स्वार्थ लगेगा तो भाई भाई नहीं हो, ब्लड रिलेशन में ही भाई भाई नहीं होता है, सब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो ये रिलीजियन में कैसा होगा? सब जब स्वार्थ में आएगा तो तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा बोलेगा। तो ये धर्म के पद पे आके जब हम लोग ये रियलाइज करेंगे, हाँ हमारे अंदर ईश्वर है, हम सब एक है, अंदर से हम सब एक है, तब ये लड़ाई बंद है। और इसलिए हम सब ये हिंदू धर्म में ये सब हम संत लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि अंदर से सबको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर है, हम सब एक। ये जब पूरा राज्य में, पूरा राज्य में हर लोगों के बीच आएगा तब जाके लड़ाई बनेगी। और ये सबको करना चाहिए, तुम लोगों को भी करना चाहिए। मतलब ये धर्म की बात ये नहीं है कि बूढ़े पे बूढ़ा जब होंगे तब करना, ये एकदम शुरू से करना चाहिए। क्योंकि जब तुम पढ़ाई किए हो तो छोटे जब थे तब से ही शुरू किए हो, तब ना जाके कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने ना, अचानक से तो कोई नहीं बन सकता। तो एक सही इंसान बनने के लिए भी शुरू से करना चाहिए। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ पे आए हो और ये जानना चाहते हो, धर्म के बारे में जानना चाहते हो। ये जो इंटरेस्ट है ये तुम लोग मतलब जो यंग जनरेशन है उनको इंस्पायर करो कि यंग जनरेशन को ये धर्म के बारे में चर्चा करना चाहिए। ये कोई बैकडेटेड नहीं है, और एक तरफ ये कोई बैकडेटेड चीज नहीं है और दूसरी तरफ कोई ये स्टेटस बढ़ाने के लिए भी नहीं है कि हम इस धर्म के हैं। हाँ, ये जो स्टेटस बोलते हैं ना कि ये संस्था से हम जुड़े हैं, स्टेटस के लिए। असल में जानो धर्म क्या है, असल में जानो कि ये तत्व क्या है। हमारे इंडिया में बहुत चीज है, मतलब खनी है, ट्रेजर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पे भीड़ हुआ है क्योंकि ये लोग आए हैं, पर बहुत सारे संत लोग हैं जो सही में संत है, जो ईश्वर को लेके है। तुम उन लोगों के पास जाओ, तो बाहर लोगों को देख के तुम लोग बोले ये बाहर से आए हैं यहाँ पे जानने के लिए। और हम लोग सब जो बाहर जो एक्सेप्टेंस हो तो उधर चले जाते हैं, पर यहाँ ये तो ट्रेजर यहाँ पे है। हम जो हमारे पास है उनको लेके हम गर्वित नहीं है, हम दूसरों को देख के इंस्पायर। क्यों? ये लोग तो हम लोगों को देख के इंस्पायर हुआ है। तो तुम अपने आप में मतलब गर्वान्वित हो कि हाँ, वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन, वी आर हिंदू, बिकॉज दिस ट्रेजर इज हियर एंड फ्रॉम नॉट नाउ, फ्रॉम लॉन्ग ये जो हो रहा है 144 इयर्स के बाद हो रहा है। तो सब जगह से आए हैं, तो यहाँ पे आए हैं ना, बाहर तो नहीं गए। तो वी शुड बी प्राउड दैट वी आर हियर, वी टू बर्थ ओवर हियर, you know. So when you will feel that you are proud, that you are Indian, you are Hindu, people will going to be inspired, that they will going to be inspired, that this generation is, you know, they are inspired and they are working for good. मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को।